السلام علیکم. مصفدر خیسر کوثر نیوز سے. ریاست کرناٹک کا ایک مشعل، ایک روشن باب جسے ہم عام طور پر بی شیخ علی صاحب کے نام سے جانا کرتے تھے، آج وہ روشن باب سے اس دار فانی سے کوچ کر چکا ہے. میرے ساتھ سابق مرکزی وزیر رحمان خان صاحب بنگلور سے تشریف لائے ہوئے ہیں کہ کیا تاثرات ہیں رحمان خان صاحب کے، آئیے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی کیسے لگا آپ کو؟ آپ کے خراج عقیدت کے طور پر کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جیسا ہی آج جناب ڈاکٹر بی شیخ علی صاحب کی رحلت کی اطلاع ملی جی تو مجھے ایک شاک جیسا لگا، جی سر. کیونکہ چند دن پہلے ہی ہماری بات چیت ہوئی تھی جی سر. اور وہ زندگی میں کتنے بھی مشکل مراحل آئے وہ بڑے ڈیٹ سے فیس کرتے تھے. تو آج ہمارے ڈاکٹر بی شیخ علی صاحب ملت کے محسن ہیں جی وہ، سر. اور ان کے خدمات ہر طرف سے، یعنی کہ ایز اے پروفیسر، ایز اے انٹلیکچوئل، ایز اے لٹریری فگر، وہ سارے دنیا کو ان کا علم ہے. جی سر. تو آج ہم ان کو کھو دیے ہیں. حالانکہ ہر ایک کو مرنا ہے، مگر ان سے ہم کو سبق سیکھنا ہے کہ زندگی کے آخری وقت تک بھی، اور جس عمر میں انسان آرام کرنا چاہتا ہے تو وہ آرام کرنے کے بغیر ہر وقت کام ہی کرتے تھے، اور اپنے جو لٹریچر سے اپنے جو مصنف بھی تھے وہ خدمت کرتے رہے. آخری میں ان کی کتاب جو پبلش ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مولانا عبدالکلام آزاد کا ٹرانسلیشن انہوں نے کیا، ایک والیوم، اچھی بڑی والیوم ہے. تو ہر شعبے سے کہتے ہیں، اور مجھے تو بہت پرسنل لاس ہے، اس لیے کہ میرے اور ان کے تعلقات کچھ 65 سال سے تھے. اور جس وقت میں میسور میں اس ہاسٹل میں ایڈمیشن لیا، اس وقت ہمارے رابطہ رہا اور ہر وقت ہمارا رابطہ رہتا تھا. اور سالار کے ہمارے چیف ایڈیٹر بھی تھے. انہوں نے سالار میں کو بھی بہت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کے آرٹیکل سے. تو آج ملت ایک بہت بڑے مدبر کو ہم نے کھو لیا ہے. اللہ ان کو جنت مغفرت کرے اور ان کے پسماندگی کو صبر و جمیل عطا کرے. نوجوانوں کو ہمیشہ ایک موٹیویٹ موٹیویٹ ان سے ہر نوجوان موٹیویٹ ہونا چاہیے. 97 ایئرس کی ایج میں بھی وہ موٹیویٹ کرتے تھے نوجوانوں کو، امت کو موٹیویٹ کرتے تھے. شکریہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو آپ کو صدمہ ہوا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے. سر، کتنے دنوں سے والد صاحب زیر علاج تھے، ذرا بتائیے سر. تقریباً 12 دن سے جی چھوٹی سی بخار تھی. جی پھر بخار کی خاطر میں نے کہا کہ ہاسپٹل چلیں. جی ہاسپٹل لے گئے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ان کو لارنجیل ایڈیما ہوگا. جی لارنگ جو ہوتا ہے حلق کی جگہ پر، جی اور اس کے لیے ہم نے کافی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، جی اس کے بے حساب دوائیں کا استعمال کیے، جی مگر اس کا کچھ علاج میں فائدہ نہیں رہا. جی بس یہی ہے حالت. کل بسے 3 ہفتے پہلے میری بہن گزر چکی اور آج کا دن ہے یہ. سر، آخری بات آپ سے کب ہوئی تھی مرحوم سے؟ آخری بات جو ہے انہوں نے آج صبح میں ہی بات ہوئی تھی. جی مگر اس سے پہلے کی بات یہ رہی کہ میں نے ان سے کافی سوالیں پوچھتا رہا. جی پہلا سوال یہ تھا، آپ کی زندگی میں سب سے بہترین دن، یعنی سب سے مومنٹس دن کون سا رہا؟ جی انہوں نے، میں سوچ رہا تھا شاید ہو سکتا ہے وائس چانسلر رہے، بالکل کافی کتابیں لکھے ہوئے ہیں، کافی یعنی پوری دنیا پھر چکے ہیں، جی 5 لینگویجز جانتے ہیں. مگر انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کہا کہ جب مجھے لندن کو جانے کی اسکالرشپ ملی، جی یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 1950 کی بات ہے، جی سر. تقریباً 80 سال پہلے کی بات ہے. 80 سال پہلے کی بات. 80 سال پہلے بھی انہوں نے علم کے لیے اتنا دلچسپی لگاتے تھے اور اتنا انٹرسٹ لیتے تھے. یہ سوچ سمجھنے کی بات ہے کہ 80 سال پہلے انہوں نے، ان کی جو ہے the best part of its life was getting a small scholarship. یہ بات نہیں رہی کہ 2 یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، 2
काफ़ी 50 किताबें लिखे हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक उनको इज्जत नहीं मिली, ये नहीं थी बात। उनकी छोटी सी स्कॉलरशिप की बात। फिर मैंने दूसरा सवाल रहा आपका, दिन में आपकी यानी कौन सा सबसे दुख का दिन रहा? वो उन्होंने कहा जब मेरे वालिद साहब गुजर गए, वही सबसे दुख का दिन रहा। आज मेरी जिंदगी में वही तो, बस दुआ करें कि हर मगफिरत की दुआ करें, जन्नत में फिरदौस पहुंच जाए, हमारे से जो गलतियां हो गई उनको माफ कर वालेकुम सर। सर, मरहूम के साथ आप कई सालों से आपके रिश्ता एक मजबूत रिश्ता रहा और आप हमेशा उनको आइडियल माना करते थे। आपकी तकारीर में भी उनकी कई मरतबा तस्करा किए हैं आप शेख अली साहब को लेकर। सर, आज आप मैसूर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे वक्त पे क्या कहा जाए। जी सर। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे प्रोफेसर शेख अली साहब, मगर उनके खिदमात जो हैं कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, दुनिया के कोने कोने में उनके शागिर्द मौजूद हैं। जब ये प्रोफेसर होकर बच्चों को पढ़ाते रहे, उनके स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, और हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, सब कौम के स्टूडेंट्स उनके रहे। और ये लिए हमारे ये बड़ी इज़्ज़त की बात थी कि प्रोफेसर शेख अली साहब प्रोफेसर वाइस चांसलर हुए मंगलोर यूनिवर्सिटी के, वाइस चांसलर हुए गोवा यूनिवर्सिटी के, वहाँ अच्छा काम किया और अच्छा नाम कमाया। ये बड़े फ़ख्र की बात है। मेरे से उनका रब्ता बहुत कई सालों से रहा और वो मेरे आइडल रहे, और मुझे एक तसल्ली बख्श ये है कि मैंने भी उनके लिए कुछ खिदमत की। मैंने 2.5 एकड़ जगह जो है उनको मोडा की सिविक कम्युनिटी साइट में, जब मैं नगर विकास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, मैंने उनको जगह दिलवाई। एजुकेशन फील्ड में वो काम जो करते रहे, और उनके चंद अल्फाज मेरे दिमाग में आज भी रहते हैं। मैं कई जगह कहता हूँ, वो हमेशा कहते थे कि कौम को 3 बीमारियां हैं, सुस्ती, मस्ती, ज़बरदस्ती। फिर ये कहते थे कि एक पहले सुस्ती, मस्ती, ज़बरदस्ती, और उसके बाद ये भी कहते हैं आइंदा हमारे कौम को ये याद रखना चाहिए, नज़र, सब्र, खबर और मुक़द्दर। तो ये बातें हर बात में एक तय है जी। प्रोफेसर शेख अली साहब हमारे कहते रहे। बहरहाल हमारा काम है, उनके फॉलोअर्स का काम है कि जो उनका पूरा ख्वाब, उनका जो अभी बिल्डिंग वगैरह जो ज़ेर तामीर है, उसको हमको पूरा करना है, हमको, आपको, सबको मिलके पूरा करना है। बहुत शुक्रिया सर। ये एक अजीम हस्ती रही। मैं समझता हूँ कि आज तालीमी मैदान में एक बड़ा नुकसान हुआ है। एक मोहतबर हस्ती जो अपने आप को कौम का एक हम सब फ़ख्र मानते थे, एक हिस्टोरियन होने के नाते बेबाकी के साथ तारीख़ को है ना लोगों के सामने रखना, और ख़ास तौर से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही करीब शहीदान में थे। शहीद के नाम की एक किताब भी उन्होंने लिखी थी, और मैं समझता हूँ कि हम सब एक ऐसी हस्ती को खो गए हैं कि इसे पुर करना नामुमकिन है। उनके तालीमी ज़िंदगी में जितने मेडल और जितने डिग्रियां हासिल की हैं, ये हमारे लिए एक नमूना है कि हमारी नस्ल में ये शरूर पैदा होना चाहिए कि तालीम के ज़रिए हमें हमारा मुकाम बनाना है। जैसे आज मुझे सवेरे मालूम हुआ, हालांकि गुज़िश्ता 7 दिन से ये बिल्कुल आपकी तबीयत नाजुक ज़ेर इलाज हॉस्पिटल में रहे, जैसे आज मुझे मालूम हुआ सवेरे से हॉस्पिटल में भी रहा, और दूसरे जितने भी दीगर इंतज़ामात करना था वो तब है ना अल्लाह ने मैं समझता हूँ कि एक अदना सी खिदमत करने का मौका हमें नसीब हुआ है। मैं
हज़रत शेख अली साहब के तमाम ख़ानदान वालों को, चाहने वालों को और उनके साथ वाबस्ता रखने वालों को एक जो नुकसान हुआ है इसे पुर करने की ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे और उनको सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को ना अल्लाह मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, क्योंकि उनकी शख्सियत मैं सिर्फ 4 अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जो रिश्ता रहा है, कभी अपने आप को बड़े नहीं समझे। अगर इदारे का मामला है, हाल ही में मुस्लिम हॉस्टल को एक एडमिनिस्ट्रेटर डालने का ऑर्डर हुआ था, तो इसको लेकर वो बड़े परेशान रहे, तो वो मेरे तक है ना, मेरे घर तक आए थे। मैंने कहा कि हज़रत ये आप मेरे तक आने का नहीं है, मुझे बुलाते तो मैं खुद आ जाता। तो जो भी काम करते उसे ताए तकमील तक है ना ले जाने की पूरी जद्दोजहद उनमें रही। और डॉक्टर जाकिर से परसों हॉस्पिटल में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान आपने हमें पैदा किए हैं, हमें अधूरा छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो शेख अली साहब ने कहा कि दुनिया में हर कोई जो आता है वो औरों की खिदमत के लिए आता है, मैं नहीं रहा तो क्या, खिदमत आगे बढ़ाओ। तो इन अल्फाज से ही पता चलता है कि उनकी सारी ज़िंदगी वो खिदमत खल्क के लिए और मिलत के बेदारगी के लिए, तालीमी बेदारगी के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वफ़ कर दिए थे। तो इस वजह से आज हमें इस बात का रंज है कि उम्मीद तो हज़ारों साल जीने की है, तमन्ना हमारी जो भी है, लेकिन अल्लाह के सामने हमारी कुछ नहीं चलती। बहरहाल जो भी हुआ है हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, तो दुआ के लिए अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह है ना उनके जो नेक ख्वाहिशात थे उसे आज हमें ज़िंदा रख कर आगे ले जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। शुक्रिया सर, शेख अली साहब के साथ मेरे ताल्लुक़ात तकरीबन 35 बरस से ज़्यादा से रहे हैं। मैं हमेशा एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से उनकी किताबें पढ़ा करता था। टीपू सुल्तान पर लिखी उनकी किताब नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो शाये की थी, वो किताब मेरे ज़ेर मुताला रही। जब उनसे मिलने के मौके हुए तो मैंने उनको एक लिविंग एनसाइक्लोपीडिया पाया, चलता फिरता मालूमात का ख़जाना। और मैं समझता हूँ कि दौर हाजिर में जो हमारे कौमी सतह के जो दानिश्वर हैं और मोतबर मवर्रिखीन हैं, उनमें आपका शुमार होता है। सारी दुनिया में तारीख़ के हवाले से लिखी हुई उनकी किताबें, बिलखुसूस कर्नाटक की तारीख़ और हैदर अली और टीपू सुल्तान के हवाले से जो उन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में PhD की है, एक अलीगढ़ में और लंदन में, उसके नतीजे में जो उनकी किताबें रही हैं वह आज भी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में हवाले के तौर पे पढ़ाई जाती हैं। मुलाजिमत के दौरान जो कुछ उन्होंने लिखा, तकरीबन 30-35 किताबें, वजीफ़ा याबी के बाद तकरीबन 35 साल के अरसे में उन्होंने हर साल एक किताब लिखी है। उस हिसाब से 35-40 उनकी किताबें हो गई हैं। न सिर्फ उन्हें दुनियावी मालूमात थी, तारीख़ दुनिया की तो मालूम थी ही, मगर वो इस्लामी तारीख़ के भी माहिर थे। कुरान करीम की हिकमत से वो वाकिफ़ थे और उसवे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ थे। और काबिरीन इस्लाम के जो कारनामे हैं उनको उन्होंने किताबों में समोया है। रोज़नामा सालार के मुदीर आला की हैसियत से उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो लोगों में बड़े ज़ौक़ से पढ़ा गया है। और वो मज़ामीन के मुंतखब किताबें भी आई हैं, चाहे वो शिबली के ताल्लुक़ से रही हों, वो शेख सादी के हवाले से रही हों, मौलाना आज़ाद के हवाले से या मौलाना हाली के हवाले से, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हवाले से। मैं समझता हूँ कि कौमी सतह पर जिस हद तक उन्हें उनकी खिदमत का इतराफ़ होना था, हुकूमत की जानिब से नहीं हो सका। अलमिया है सर, क्योंकि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वो एज़ाज़ अगर उनको दिया जाता तो उन एज़ाज़ात की और क़द्र क़ीमत बढ़ जाती थी। इसके कई उमूर शामिल हैं। बहरहाल जो इज़्ज़त व एहतराम उन्हें अल्लाह ने लोगों की नज़र में दिया, लोगों ने जो उन्हें क़द्र की निगाहों से देखा, अवार्ड से बड़ा ये आने वाले कई बरसों तक ये याद रखे जाएंगी। ये एक मुझे बात याद आती है कि
फिराक गोरखपुरी ने एक मर्तबा कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी जब तुम कहोगे कि तुमने फ़िराक को देखा था। मैं इसमें तरमीम करते हुए कहूँगा कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी जब तुम ये कहोगे कि तुमने न सिर्फ शेख अली साहब को पढ़ा है, देखा है, सुना है और उनको जाना है। इस एतबार से शेख अली साहब अपनी खिदमत की रोशनी में और फ़िक्र मिल्लत के हवाले से भी और अपनी किताबों के विरसे के हवाले से भी और यादों के हवाले से भी हमेशा याद रखे जाएं। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सुहेल भाई, हमेशा ईदैन की नमाज़ों में पहली यानी जब पहली सफ़ हुआ करती थी वहाँ पे आया करते थे शेख अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जब से मैंने प्रोफेसर शेख अली साहब को देखा है, एक चीज़ मैंने गौर की है, हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन जो होता था उसी दिन प्रोफेसर शेख अली साहब का भी जन्मदिन होता था। मैं उन्हें विश करने जाता था। जब मैं तिलक नगर का कॉरपोरेटर बना, जब मैंने ईदगाह की नमाज़ पहले अपने इख्तियार में ली, तब आकर उन्होंने नीचे पढ़कर नमाज़ पढ़ा। उन्होंने कहा, मेरे से गुजारिश की थी, जब भी मैं नमाज़ को आऊँ तो मुझे एक चेयर का इंतज़ाम कर दो सुहेल करके। तब से एक चीज़ उनसे सीखने को मिली, उन्हीं के लिए नहीं, तमाम जितने भी चेयर पे बैठने वाले नमाज़ पढ़ने, उन सबको मैंने चेयर अरेंज किया। और जहाँ तक मैं रोशन बेग साहब को जानता हूँ, जब भी वो मैसूर आए हैं, उनके घर को गए नहीं बगैर वो शायद बेंगलोर नहीं गए। जब भी मैसूर आते मुझे लेके जाते, मुझे रोशन बेग साहब कहते, सुहेल इनके बाजू बैठो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक मैं एक 30 साल से प्रोफेसर शेख अली साहब को जानता हूँ और हमारे रोशन बेग साहब ने जो उनके लिए 2.5 एकड़ CA अलाट की सिद्धरामैया साहब से लड़कर, वो हम डॉक्यूमेंट देने गए थे। तभी भी जब भी रोशन बेग साहब मैसूर का आते हैं, उनके घर को जाए बगैर जाते नहीं, क्योंकि इतने तजुर्बेकार इंसान, हर चीज़ में उनको कुछ सीखने को मिलता था। मुझे भी उनसे बहुत सीखने को मिला है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत मग़फ़िरत फरमाए। और तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की जानिब से मैं हमारे सेक्रेटरी, हमारे सदर साहब और हमारे मुमताज़ भैया तनवीर सेठ साहब के डायरेक्शन पर अल अंसार से हर चीज़ जाकर उनके जो भी हमारे ज़रूरत से हमारे कर सकते हैं हम लोगों ने किया है। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कब्रिस्तान में जो इंतजाम हुए हैं, गेट नंबर बताइए कहाँ? गेट नंबर 8 में, और हमारी बिल्कुल हाफिज़ के बाजू एक नई मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद के बाद उनका एक ये था, कौल था कि उन्हें एक झाड़ के नीचे दफनाएं। मुझे तनवीर सेठ साहब ने कहा, देख बात, एक झाड़ रना सिराने उनके झाड़ रना करके, बहुत मुश्किल से हमने वहाँ पे एक हमारे तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की जो नई मस्जिद बनाई गई है उसके बाजू में उनका मदफन का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। बारिश आने की वजह से एक तारपल ये सब उनका इंतज़ाम किया है। ठीक 7:30 बजे वहाँ पर टीपू सर्कल में 8 नंबर गेट में उनका मदफन का इंतज़ाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि शहर मैसूर को ये मायनाज़ काबिल फ़ख्र शख्सियत अल्लाह ताला ने अता किया था। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की ये बात है कि वो मेरे ताया भी थे और मेरे नाना भी थे, और पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपने पीछे इल्म का और इदारों का एक जाल छोड़ा है। उसके लिए मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी शख्सियतें हमारी कौम मुसलमान में बार बार पैदा करते रहे। जो खला इस वक्त पैदा हुआ है शहर मैसूर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ज़बरदस्त खला है, और उन्होंने जिस मशाल को हमारे लिए जलाकर अपनी पूरी उम्र को कलम और इल्म और किताब के ज़रिए जो पैगाम दिया है, ये उम्मत मुस्लिमा के मुस्तक़बिल के तामीर के लिए अहम तरीन पैगाम है। जब तक उम्मत इस पैगाम को याद रखेगी, मैं एक ख़ानदान का फ़र्ज़ होते हुए पूरे ख़ानदान की तरफ से फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ने हमारे ख़ानदान में ऐसी शख्सियत को अल्लाह पैदा किया। और इरादा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इल्म के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा की और मुल्क की और हमारे भारत की खिदमत की है, ऐसी शख्सियतें बार बार हमारे दरमियान पैदा होती रहे। इस वक्त हम इंतहाई गमज़दा हैं। ख़ुसूसियत से शहर मैसूर के लिए एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। एक हमारी बड़ी शख्सियत सरपरस्त हमसे जुदा हो रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला दर्जात में, आला इल्लियीन में, जन्नतुल फ़िरदौस में उनके लिए मकाम अता फरमाए। और जो कुछ उन्होंने किया मैं समझता हूँ हमारे दादा साहब की तालीमात का असर था जिसको उन्होंने छोड़ा है। मैं हमारे अपने ख़ानदान वालों से ये दरख्वास्त करूँगा, जिस तरह से इन्होंने
ہمارے تایا صاحب نے، نانا صاحب نے خدمات کر کے قوم اور ملت کے لیے اس کا جھنڈا سربلند کیا ہے، ہمارے آنے والی نسلیں بھی اسے زندہ رکھیں. شکریہ.